Okay, so in the last lecture, we understood what is a symbol, what does a symbol represent, what is the quantitative meaning of a symbol, what is a chemical formula of an element, of a compound, how to write a chemical formula, then the concept of valency, how metals have positive valency and non-metals have negative valency, and what is the meaning. Then how to name different elements with different valencies. Then what are radicals. Then I told you to learn this table for the valency chart of electropositive and electronegative elements and radicals. Then we learned about writing the chemical formula of a compound by crisscross method, and how to name the chemical formula and what are the rules for naming chemical uh, compounds formulae. Today we are going to start with law of conservation of mass. Since we are beginning with chemical reactions and equations, we can start with law of conservation of mass. So law of conservation of mass says that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. In a chemical reaction, mass can neither be created nor be destroyed. The total mass of the reactants is always equal to the total mass of the products in a chemical equation. So balancing of chemical equation has to be done in such a way that your result or outcome is in accordance with law of conservation of mass. That means the total number of elements or atoms on the product side and the reactant side should be equal, which signifies that mass of reactant is equal to mass of product. So we will see how law of conservation of mass is going to be useful when we write a chemical equation. Okay. Now suppose I want to balance a chemical equation. For that I need to understand what is a chemical equation. So here one chemical equation is given, and this equation is known as word equation. Why word equation? Because everything is written in words. So magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. This is a chemical equation. Here chemical reaction basically, but word equation. Okay. So here magnesium and oxygen are reactants and magnesium oxide is a product. So we have reactants on the left hand side, then there is an arrow, and then you have product on the right hand side. Okay. So the substances which take part in the chemical reaction are known as reactants, and the new substances formed are known as products. Okay. So let me rewrite it again in terms of chemical formula. Magnesium Mg, okay, plus oxygen O2 gives magnesium oxide MgO. So for writing a chemical equation, what you require is to know the valencies. Suppose we have Mg 2 plus and O2 minus. If you do crisscross method, then you understand that it becomes MgO, magnesium oxide. Okay. So how I got this formula of magnesium oxide is using the valencies. So knowledge of valency is very much required over here. Okay, now I have to balance this equation. Now before we go to balancing, there are certain basic things which we will understand, and then we will do the balancing. Okay. Now what are the reactants in this case? The reactants are written on the left side of the arrow. So the reactants over here are magnesium and oxygen. They are the reactants. And what is the product? The product is magnesium oxide. So now you know what are the reactants and what are the products. Okay. Few more terms for you. Word equation. A chemical equation that represents a chemical reaction briefly in words is called a word equation. The substances which take part in a chemical reaction
are called reactants. The reactants are always written on the left hand side of a chemical equation. The new substances formed as a result of a chemical reaction are called products, and the products are always written on the right hand side of a chemical equation. A plus sign is put between the reactants or the products if they are more in number, more than 2. Okay, arrow is written between the reactants and products. Arrow shows the direction of chemical equation or reaction, the direction in which the reaction proceeds. So पहले हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे and they converted into magnesium oxide. That's what the arrow shows. Writing a chemical equation. See, yes, you can write a chemical equation in words, but there is a faster or a shorter way for representing a chemical equation. To make the chemical equation more concise, more informative, and more easy to remember, we write them with the help of chemical formulae. So there is a definition given over here, very important definition. A chemical equation is a statement that describes a chemical reaction in terms of symbols and formulae. केमिकल इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जैसे हमने अभी लिखा था एक केमिकल इक्वेशन Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग की और कैसे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये भी हम बात करेंगे. सो केमिकल इक्वेशन तो मैंने लिख दिया है, लेकिन just see the number of elements which are present on the reactant side and the product side. On reactant side we have a magnesium and we have one atom of magnesium. We also have oxygen, but there are two atoms of oxygen. O2 means two atoms of oxygen. On the product side we have a magnesium but one atom of magnesium, and oxygen also we have but only one atom. Yes. Sir, but like, why is it like important to balance this equation? Yeah, I will tell you. I will Be tell you. balanced. I will tell you. That is what I am coming on. So if you see over here, this equation is unbalanced. Why? Because the number of magnesium atom is same on the reactant side and the product side, but the number of oxygen atom is 2 on the reactant side and 1 on the product side. So why this is not fine, or why we need to bring a balance? This is in order to comply with law of conservation of mass. What does law of conservation of mass say? That a matter cannot be created nor be destroyed. The total mass of elements on the product side and on the reactant side must be equal, or the total number of atoms of each element on the reactant side and the product side must be equal. So इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ओरिजिनली 2 ऑक्सीजन के एटम थे, originally if I had 2 oxygen atoms, then the oxygen atom cannot disappear on its own. समझ में आया? ऑक्सीजन एटम 1 कैसे हो गया अपने आप? वो डिसअपियर तो नहीं हो सकता ना. Oxygen atoms, the number of atoms of each kind should remain same on both the sides before and after the reaction in order to comply with law of conservation of mass. ये एक यूनिवर्सल लॉ है. यूनिवर्सल लॉ इसलिए है बिकॉज कभी भी कोई मैटर खुद से क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर. केमिकल रिएक्शन में मैटर सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करके नए फॉर्म में आ जाती है. मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने कॉम्बिनेशन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड नया सब्सटेंस बनाया. सो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. दैट्स वाई दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. बट न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होने में एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, एटम्स क्रिएट नहीं हो सकते. इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड शुड बी द सेम. ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो क्लियरली यहाँ पे एक इम्बैलेंस है. वो इम्बैलेंस को अपने को हटाना पड़ेगा. ठीक है, वी हैव टू रिमूव दैट इम्बैलेंस. सो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, अब उस पर आ जाते हैं. ओके, सो नाउ आई रिक्वायर 2
atoms of oxygen on the product side. Since there are two oxygen atoms on the reactant side, on the product side also I require 2 atoms of oxygen. ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे 2 लिख दूंगा. सी इट इज़ नॉट अलाउड टू राइट एनी नंबर इन द सबस्क्रिप्ट. मतलब मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता. ये MgO2 उसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा और वो गलत फार्मूला है. तो यहाँ पे 2 नीचे नहीं लिखना है कभी भी. तुम्हें अगर कोई भी नंबर ऐड करना है तो वो केमिकल फार्मूला के फ्रंट में करना है, इन द फ्रंट ऑफ द केमिकल फार्मूला. तो इन फ्रंट ऑफ केमिकल फार्मूला जब मैं 2 लिखता हूँ, इसका मतलब ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. मतलब मैग्नीशियम भी 2 बन जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 बन जाएगा. इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम कितना हो गया 2, तो ये 1 कैंसिल करके 2, और यहाँ भी 1 कैंसिल करके हम लोग 2 लिख सकते हैं. देखो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन मैग्नीशियम फिर से इम्बैलेंस हो गया. तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम के नीचे 2 नहीं लिखना, कभी भी नीचे 2 नहीं लिखना है. कहाँ पे लिखना है, आगे लिखना है. ठीक है, सो इधर आगे मैंने लिख दिया. अब ये हो जाएगा 2. तो मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और ये केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस्ड है. दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. Yes, any questions? ओके, और एक एग्जाम्पल दूं इसका, और एक एग्जाम्पल लेते हैं. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. तुम्हें पता है ना, हाइड्रोजन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2 है. हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी है 2, इसलिए हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं. It gives H2O. This is your chemical equation. Is this a balanced chemical equation? Is this a balanced? No, this is not a balanced chemical equation. Since number of hydrogen atoms here are 2, number of oxygen atoms are 2 on the reactant side. On the product side, number of hydrogen atoms are 2, but number of oxygen atoms are 1. So definitely this does not comply with the law of conservation of mass or matter. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड शुड बी इक्वल ऑन द बोथ द साइड, बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड. तो हमको पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा. यहाँ पे 2 लिखने से क्या होगा पता है, ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2O बना देगा. तो वी हैव 2 ऑक्सीजन. बट हाइड्रोजन कितना हो गया, कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी हाइड्रोजन्स डू वी हैव? Sir, 4, sir. Very good, because this 2 and this 2 in the subscript gets multiplied, and thus we have 2 2s are 4 hydrogens, not 2, 4 hydrogens. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, मुझे उसको 4 बनाना है. कोई बता सकता है मैं कैसे इसको 4 बना सकता हूँ? Sir, by adding, by putting 1 to before. इन फ्रंट ऑफ H2. यस, सो तो ये हो जाएगा 2 2s are 4, ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड आई हैव गॉट 4 हाइड्रोजन. सो एक्चुअल बैलेंस्ड इक्वेशन ये है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. ये तुम्हारा बैलेंस्ड इक्वेशन है. समझ में आया कैसे बैलेंसिंग करते हैं? ठीक है, और भी ऐसे कुछ इक्वेशंस है, देखते हैं हम लोग. तुम्हारी बुक में भी कोई एग्जाम्पल अगर रहेंगे तो वी कैन हैव अ लुक. ये वाला है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट गिव्स KNO2 प्लस O2. चलो इसको लिखते हैं यहाँ पे, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग. इसको जब हीट करेंगे ना तो ये हमें देगा पोटेशियम नाइट्राइट, सॉरी KNO2 हो जाएगा, ये KNO2 हो जाएगा ये, प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, KNO3 गिव्स KNO2 प्लस O2, राइट? ओके, देखो अगर ये है तुम्हारा इक्वेशन, मुझे बताओ Kea, can you tell me how many potassiums are there on the reactant side? This is the reactant side and this is the product side. How many potassium atoms are there on the reactant side?
How many Ks do you see over here? 1. Yes, it is 1. Potassium is 1. How many nitrogens do you see on the reactant side? 1. वेरी गुड, या इट इज़ 1. इसके नीचे कोई नंबर है? नहीं है. सबस्क्रिप्ट में ओ के सबस्क्रिप्ट में नंबर है, एन के सबस्क्रिप्ट में, के सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं है. सबस्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे नीचे जो स्पेस है वो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब इट इज़ 1. अच्छा, इसके आगे कोई नंबर है? नहीं, वहाँ भी नहीं है, तो मतलब इट इज़ 1 ओनली. एंड टेल मी हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड? 3. yes, you are right. ठीक है. Okay, Aditya, can you tell me how many potassiums do you see on the product side? Yes, sir. 1, sir. And nitrogen? Yeah, it's also 1. And oxygen? Is 2. 4. Correct. 2 plus Yeah. 2, 4. 2 plus 2 is 4. So of course ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो स्मॉलेस्ट नंबर आई कैन मल्टीप्लाई on the reactant side is 2. In front of KNO3 I can multiply 2, the smallest number. So if I multiply 2 over here, it would look like this, 2 KNO3. लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा पता है? पोटेशियम 2 बन जाएगा, नाइट्रोजन 2 बन जाएगा. कैन यू टेल मी के हाउ मच ऑक्सीजन विल नाउ बी देयर इन द रिएक्टेंट साइड? How many oxygens would be there now in the reactant side? So, 1. How come 1 यार? इधर तो 3 है, 1 कैसे होगा? 3 तो पहले से ही था, अगर 2 ऐड किया तो कम कैसे हो जाएगा ऑक्सीजन? आगे 2 भी डाला है. तुम्हें इससे पहले वाला इक्वेशन बताया था ना मैंने. एक मिनट, हाँ, इसके ऊपर वाला, यस, ये वाला, ये H2 के आगे 2 डाला था तो क्या हुआ था? ये हाइड्रोजन कितने बन गए थे? 2 2 ज़ा 4. मतलब ये आगे लिखा हुआ नंबर और सब्सक्रिप्ट वाला नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें. तो यही लॉजिक से बताओ कितने ऑक्सीजन है. यस, वेरी गुड, इट इज़ 6. अब क्या हो गया कि ऑक्सीजन बन गया 6, पोटेशियम और नाइट्रोजन बन गया 2. अब मुझे बैलेंस करना है इनको, तो मैं क्या करूँगा पता है? मैं सिंपली इधर 2 लिख दूंगा मैं इसको बैलेंस करने के लिए. इससे क्या होगा? पोटेशियम बन जाएगा 2, नाइट्रोजन बन जाएगा 2, ऑक्सीजन हो जाएगा कितना यहाँ पे? बोलो एक साथ. नहीं नहीं, ऑक्सीजन इस यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा? 4 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी है, तो 4 प्लस 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6. एंड नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. Do you see that it is balanced? 2KNO3 gives 2KNO2 plus O2. This is a balanced chemical equation. तुम्हें बहुत सारे बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, इसका कुछ इतना रेलेवेंस नहीं है. हम लोग करेंगे और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं तुम्हें एक वीडियो भी दूंगा जो सिर्फ बैलेंसिंग डिस्कस करता है. ठीक है, वो तुम लोग का आराम से देख सकते हो उसको, और तुम लोग और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो. बट बिफोर दैट थोड़ा बहुत थियरी है, वो कर लेते हैं. तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of various elements towards the reactant side is equal to the number of atoms of various elements towards the product side, उसको बोलते हैं balanced chemical equation. The number of reactants on the reactant side, number of elements on the reactant side is equal to the number of reactants on the number of elements or atoms on the product side. They must be equal. और बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें क्या क्या समझ में आता है? इट टेल्स अस अबाउट द रिएक्टेंट्स विच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. इट टेल्स अस अबाउट द प्रोडक्ट्स formed during a chemical reaction. It tells us about the number of molecules of each reactant taking part in a chemical reaction. मतलब हमें वर्ड इक्वेशन से अब आगे बढ़ना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझना है और बनाना है, ताकि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके. So now we will be encountering balanced chemical equation and understanding more
about how two elements or compounds react with each other. It tells us about the number of molecules of each product formed during chemical reaction, and it tells us about the relative atomic masses of the reactants taking part in a chemical reactions and the products formed. तो ये सारी information के लिए we have to balance a chemical equation. But इसके कुछ limitation भी है, इसके कुछ limitation भी है. Although we get number of information about a chemical reaction from a chemical equation, but there are some limitations in it also. It does not provide the information about the condition के बारे में information नहीं देता, जैसे catalyst, pressure, temperature, which affects the reaction. Although we can actually add these conditions on a chemical reaction. ये तुम पढ़ोगे क्लास 9th में पढ़ोगे तुम. The physical states of chemical of reactants and products, ये भी हम ऐड कर सकते हैं, बट जस्ट एक इक्वेशन अगर हमें दिया है केमिकल इक्वेशन, उससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि फिजिकल स्टेट्स क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के. नेचर ऑफ रिएक्शन, इट मीन्स दैट इट डज नॉट इन्फॉर्म अबाउट इधर रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, वो दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है. तो ये हमें केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चल सकता है, सिर्फ अगर हमें इक्वेशन दिया है तो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये भी हमें नहीं पता चल सकता. एंड चेंजेस ऑफ हीट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, वेदर हीट इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड. सो ये सारी चीज़ें हमें अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, हमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, तब जाके हमें समझ में आता है कि ओके ये इक्वेशन में ये भी हो रहा है साथ में. एंड दैट यू विल लर्न इन फर्दर क्लासेस. ठीक है. एनीवेज, कुछ कैलकुलेशंस भी है जो केमिकल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है. ऑल्दो ये कैलकुलेशंस यहाँ पे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो डीपर इनटू द कैलकुलेशन पार्ट. लेकिन कुछ टर्म्स है वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है. एक टर्म, ऐसी ही टर्म जो तुम्हें क्लास 8th में पढ़नी है, जिसका नाम है कैटलिस्ट. सो ये कैटलिस्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन प्लीज़ लर्न कर लेना तुम लोग. Catalyst is a substance which does not take part in a chemical reaction. ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, बट चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज कर देता है, उसको फास्टर या स्लोअर बनाने में हेल्प करता है. इफ़ अ कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट. दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है. पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट बना देता है और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो कर देता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, पोटेशियम क्लोरेट को अगर मैं हीट करता हूँ तो मुझे पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है. लेकिन अगर मैंने इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड मिक्स कर दिया पोटेशियम क्लोरेट में ऐड करके, तो ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी और लोअर रेट पे लिबरेट करेगा. इसका मतलब क्या है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड हिस्सा नहीं ले रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, लेकिन एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है. सो इट इज़ नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, बट इट इज़ मेकिंग द केमिकल रिएक्शन फास्टर. ठीक है. अच्छा, और एक एग्जाम्पल दिया है इसमें, फाइनली डिवाइडेड निकल को अगर ऑयल के साथ मिक्स करके हीट किया तो ऑयल वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब इट बिकम्स आर्टिफिशियल घी. आर्टिफिशियल घी मिलता है मार्केट में, एक्चुअल जो रियल घी है दैट इज़ मिल्क प्रोडक्ट. लेकिन ऑयल से भी हम घी बना सकते हैं, वो सस्ता होता है, आर्टिफिशियल होता है, कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ठीक है. सो वनस्पति घी बना सकते हैं. And platinized asbestos is used. Platinized asbestos is used as a catalyst in the manufacture of sulfuric acid from sulfur dioxide. तो कुछ examples दिए हुए हैं यहाँ पे. Negative catalyst का भी यहाँ पे example दिया है. Addition of little alcohol into hydrogen peroxide slows down its decomposition into water and oxygen. तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम अल्कोहल ऐड करेंगे तो उसका डीकम्पोजिशन स्लो डाउन हो जाएगा. ठीक है.
एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट, तुम्हारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, तुम्हारे बॉडी में नहीं, हर बॉडी में, प्लांट बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन एक्सेलरेट द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है एमिलेज. एमिलेज क्या करता है? सलाइवा में होता है, वो स्टार्च को शुगर बनाने के लिए हेल्प करता है, इजी कर देता है. पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो स्टमक में होता है, जो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है. और ट्रिप्सिन एंड लिपेज, ये दो एंजाइम्स है, पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं इनको. वो स्टार्च, फैट और प्रोटीन को सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, सो ये तुम्हारे एंजाइम्स के रोल हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस कभी आ सकते हैं. तो यहाँ पे मेन जो यस So is there any kind of negative catalyst in the body? possibly, but that you will learn in biology, and that too in higher classes. So possibly, I really have no idea, I'm not a biology teacher, but yeah, you can ask your biology teacher. Anyways, तो जो आज हमने पढ़ा ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर तुम मुझे पूछो पार्ट, तो ये केमिकल इक्वेशन है. केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो इसके ऊपर ना एक दो शायद हम लोग कुछ इक्वेशंस बैलेंस करके देख भी सकते हैं. तुम्हें याद है ये वाला तो हमने अभी किया था, KNO3 वाला, ए वाला तो अभी किया था हमने. डू यू रिमेंबर? दिस हैज़ बीन डन बाय अस. हमने अभी बैलेंस किया था, ये भी हमने बैलेंस किया था. हाँ, ए और बी किया हुआ है. सी वाला क्या है? देखो, KClO3, KClO3 gives KCl प्लस O2. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं? क्या पोटेशियम कितने हैं? 1. ओके. क्लोरीन कितना है? Cl क्लोरीन होता है, क्लोरीन भी 1 है. ऑक्सीजन कितना है? ओके. यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम कितना है? 1. वेरी गुड. क्लोरीन कितना है? ओके. एंड ऑक्सीजन? ओके, परफेक्ट. तो भी इसको बैलेंस करना है. यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप देके आराम से लिखना है, क्योंकि गैप चाहिए अपने को बैलेंस के लिए. सॉरी, Sir, I did the equation. व्हाट डिड यू से? Sir, I did the equation. You balanced it. Okay, cool. Tell me, Aditya, what number to be added and where? Yes, sir. Sir, so in the in the product side, which is KClO3, sir, there we can put 2 in front of KClO3. Okay. So what Aditya is saying कि हम लोग यहाँ पे KClO3 के आगे 2 रख देते हैं. इससे क्या होगा? पोटेशियम 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 6 हो जाएगा. अब ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि पोटेशियम और क्लोरीन तो बैलेंस ही था, और इवन ऑक्सीजन तो यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा थे, तो 2 ऐड क्यों किया? अब इसका आंसर मिलेगा तुम्हें राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट साइड पे. प्रोडक्ट साइड पे क्या करेंगे आदित्य? Yes, sir. Sir, so first we'll add the 2 in front of KCl. Okay. Then it will make potassium and chlorine 2. Correct. And then you can add 3 in front of oxygen, so it will make it 6. Then वेरी it's गुड, balanced. वेरी गुड. सो इसमें क्या लॉजिक यूज़ किया है आदित्य ने कि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है. ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उन दोनों का एलसीएम ले लेना है. 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है. ठीक है, तो मतलब मुझे 3 को 6 बनाना है, और मुझे मतलब 3 ऑक्सीजन को 6 ऑक्सीजन बनाना है, और 2 ऑक्सीजन को मुझे बनाना है 6 ऑक्सीजन. तो इसके लिए O2 के आगे मैंने 3 ऐड कर दिया और KClO3 के आगे मैंने 2 ऐड कर दिया, तो इससे सब कुछ बैलेंस हो जाता है. तो ये सिंपल टेक्निक है जिससे ये बैलेंसिंग हो गया है. ठीक है, बाकी बैलेंसिंग का और कुछ है तो हम लोग देख लेते हैं.
नहीं, बाकी तो कुछ है नहीं। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में शायद ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे बैलेंसिंग के, ऐसा मुझे लग रहा है। विराव दलाल इज़ अ फैन ऑफ बैलेंसिंग, तो विराव दलाल काफ़ी बैलेंसिंग के क्वेश्चंस डाल देता है। Yes, sir. Yes, sir. We had some. यू हैड सम, राइट? ओके। तो अच्छा, अभी देखो, ये चैप्टर तो ख़त्म है, चैप्टर में कुछ है नहीं और, राइट? तुम्हारे लिए होमवर्क है ये एक्सरसाइज में बाकी के क्वेश्चंस जो भी है सब कंप्लीट करना है, जो भी नहीं किए हैं हमने वो सब कंप्लीट करना है। उसके अलावा मैं तुम्हें एक वीडियो देता हूँ मेरा, ये सिर्फ बैलेंसिंग के ऊपर है। वो बैलेंसिंग वाला वीडियो प्लीज़ देख लो, और थोड़ा सा वो जैसे मैंने उसमें इंस्ट्रक्शन दिए या फिर एग्जाम्पल डिस्कस किए वो तुम देख लो, एंड फिर तुम्हें बैलेंसिंग की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? आर नेक्स्ट टास्क विल बी टू कंप्लीट हाइड्रोजन एंड मैथ्स का एक जो चैप्टर है वो। और कल भी हम लोग ने बोला है ना हम लोग लेक्चर लेंगे फिज़िक्स के लिए, ठीक है? देखते हैं फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। Excuse लेट me, sir. मी, यस, Sir, can you send the textbook PDF of या physics? फिज़िक्स आई विल सेंड यू राइट अवे।